Okay. Good morning, everyone, and thank you for your time today. This is Lekha Kumar, Mr. Rajesh Ranjan Prasad, and Mr. DK Chablani. We are very happy to have this webinar today with the Income Tax Department on the new initiatives taken by the government on how life is going to get easier for, I guess, every tax assessee in this country. One of the goals that even we've taken at GJPC this term is ease of doing business. So I guess what's happening even on the income tax front fits in right with what even our goals as a council is. So, madam, just to tell you a little bit about GJPC, we are a 50-year-old council, one of the oldest councils in the country, out of all the export promotion councils. Our exports at peak were $40 billion, and second largest foreign exchange earner for the country. Contrary to image, we do have a value addition to the country's economy. We employ nearly 5 million people, and at GJPC we have 7,000 members. So we represent, and like you can see even in our logo, all the different colors of the petal are basically representing all the different segments that we represent in this industry. So whether it's diamonds, gemstones, it's studded jewelry, plain gold jewelry, silver jewelry, synthetic. So all the various facets of our gems and jewelry sector is what we represent. Like I'm sure in diamonds we are the global leaders. 14 out of 15 diamonds are cut and polished in India. We don't have a single diamond mine, but we are the largest, I guess, contributor to the diamond economy globally. Any country in the world, and the diamonds are from India. In plain gold jewelry, we are at number 5 position. Plain gold and studded jewelry, we are the fifth largest in terms of exports globally. Our exports to the US are nearly $10 billion, so we are a large contributor over there. And coming to what GJPC does is we liaise with banks, with government, with I guess various factions of trade anywhere in the world, and we try to make life easier for our members in terms of smoothing the creases whenever there are policy matters or anything of that sort. Besides that, we organize buyer seller meets all around the year. Practically, we have a packed calendar. In these COVID times, we are doing virtual buyer seller meets now. We start next month actually, but that's one of our functions is connecting our members with customers all over the world. Besides that, we also run these labs and institutes for certification, hallmarking, standards for diamonds, and I guess even on the whole customs part is where council plays a very important role when it comes to valuation. So it's our valuers which even customs department uses as valuers. So maybe it's food for thought even for you from the income tax point of view. Besides that, madam, we are always, we have a very aggressive, I guess, and active, proactive secretariat. So we have 150 people team. We have offices practically in all the major centers across the country. And I guess many of them are very long tenured and have extremely good experience on, the trade. So that's another value add when it comes to DJPC. So that's it from our end. And over to you, Sanju. Thank you, Colin. Good morning, everyone. I welcome you all on behalf of the Gem and Jewelry Export Promotion Council and especially our 3 panelists, Lekha Kumar, D. Chablani, and Rajesh Prasad ji for today's webinar, which is going to be a new chapter starting in income tax, which will have faceless assessment and appeals and tax in chapter. We all are aware that the payment of taxes, whether income tax by the individual or GST by the traders, is not just a legal matter, but a patriotic duty as well. Honest and timely payment of taxes and several benefits like registration of property becomes easier. Registration of property becomes easier, easy loans approval to claim TDS refunds, carry forward of losses, avoid interest on tax liability,
visa processing, and buying a high life cover, and many more. We are conducting this webinar today with top IRS officials who need very little introduction and have loads of experience behind them in the field of taxation. It is indeed my honor and privilege to introduce Mrs. Lekha Kumar, Chief Commissioner of Income Tax and Additional Charge of Chief Commissioner, Regional E-Assessment Center, Mumbai, to speak on income tax and throw light on the intricacies of the income tax. Mrs. Lekha Kumar is an IRS officer of 1987 batch. Presently, she is posted as a Chief Commissioner of Income Tax File and holding additional charge of Chief Commissioner, Regional E-Assessment Center in Mumbai. Mrs. Lekha Kumar, Chief Commissioner of Income Tax in Mumbai, has administrative experience of more than 33 years and is handling a wide variety of assignments in the Income Tax Department as well as in the Government of India, with stints at the Ministry of Overseas Indian Affairs and Ministry of Personnel. Before this, she's worked as a Commissioner Systems in Income Tax Department, Ministry of Finance for 6 years, and as a Director E-Governance in the Government of India for 5 years, gaining more than a decade of experience in the area of e-governance in public administration. She has graduated in economics, honors from Lady Shri Ram College, Delhi, and did her master's from Delhi School of Economics. She joined the Indian Revenue Service in 1987 and her experience is immense. Shri Rajesh Ranjan Prasadji is an IRS officer of 1989 batch. Presently, he is posted as Principal Commissioner of Income Tax 12. This charge has recently been diverted as Principal Commissioner of Income Tax Regional E-Assessment Center in Mumbai. And Mr. Chablani, who is an IRS officer of 1989 batch and is posted as Principal Commissioner of Income Tax Regional E-Assessment Center in Mumbai. Now, without taking further time, I request Lekhaji to take over and guide us further towards this faceless assessment scheme, which we hope to have getting some ease of business and everything in future for all of us. Thank you. Please, ma'am. Thank you, Mr. Kothari, for that very detailed introduction. And it's a pleasure, in fact, to be here with you and your council, which I was very happy to know is more than 50 years old, and it's probably one of the oldest in the country and having such large membership. We would be very happy to share with you the new and most historic step that has been announced by our Honorable Prime Minister on the 13th of August, Transparent Taxation Honoring the Honest. So that headline itself will indicate to you how much how much the government cares for the honest taxpayer. And like you said, it is our patriotic duty to pay the right amount taxes. Similarly, for the government servant, it is our patriotic duty to provide the highest quality of public services that we are capable of. In fact, India has not only followed the best practices in the world, we are also setting the best practices in the world. So we are way ahead in terms of tax administration. And as far as the tax administration is concerned, let me give you a brief history, because I've been associated in the world of, I've been associated with e-governance and seen the projects and seen the world over what has been happening for more than a decade. And I can tell you that the income tax department has always been very at the front line of innovation, and it has always taken steps to make sure that its taxpayers are comfortable and they are getting the services from the department in a very seamless, painless manner. And whenever there's some pain perceived on the part of the taxpayer, we are quick to innovate and come out with a reform, which would help the assessees. Now, the current reform is a historic one. It's absolutely paradigm shift in the service delivery, and it is a very bold, innovative step that we hope will add to the, the ease of business,
that you can all expect from the government. This step has taken the tax administration to the next level. The way we look at it, there are three parts to this announcement. First part is the faceless assessment scheme. Second part is the faceless appellate scheme. CIT appeals level also would become faceless. And the third part is the taxpayer charter. Now, Income Tax Department has historically used and leveraged technology since a long time. If I remember correctly, in 1994-95, we started with a unique identifier number, which we called PAN. And that is how we started identifying the assessees. And please remember that the numbers that the department is dealing with, the number of taxpayers that the department is dealing with, huge. And technology has come to our rescue. We have been able to leverage it to provide the highest level of services. I remember a time when people used to stand in long queues to file return. I think some of you would be of those times who will remember that, how much of a pain it was to stand in long queues to file your returns. But then the department innovated and launched the e-filing portal. And soon we saw that a lot of people voluntarily adopted this e-filing because they realized it was convenient, 24/7 available from home facility. Now, similarly for refund banker schemes down the years, we have introduced where the refund goes directly to your accounts. And we have also done internal process re-engineering and our own internal workflow through the ITBA system that we have launched. We have started using technology to, do error-free assessments and computations, and so on and so forth. It's a long history, but I will not go into that because today we are here to talk about the new historic move that has been recently announced by our Honorable Prime Minister. And we will explain to you what are the parameters of this particular scheme. The first and foremost, I said, was the faceless assessment scheme, which my colleague, Mr. D.K. Chablani, would be explaining to you in detail. But what it has done, which is also a different level of commitment from the department, is that it has brought out a taxpayer charter which has a legal basis. Now, this taxpayer charter gives not only the commitment from the department side, it is also highlighting the few simple duties of the taxpayer. So can I have a slide on this? Can you show me the presentation slide on this taxpayer charter, please? Yes. Next slide, please. Next one. Yes, so you will see here how the commitment of the department is for the fair, courteous and reasonable treatment, and a mutual trust has been expressed in this. So not only would we be treating taxpayers as honest, we also expect the taxpayers to live up to this expectation. So it's a question of mutual trust. Then we have, committed to providing mechanism for appeal and review, for providing complete and accurate information, timely decisions. Sometimes they get delayed. So now we are committed to providing timely decisions, collect the correct amount of tax, and just that, respect the privacy, maintain confidentiality. That shows our commitment again to win the trust of the taxpayer and behave in a manner that would inspire such a trust from the taxpayer side also. And we would also be, providing mechanism to lodge complaint, providing a just and fair system, publish service standards. So this publishing of service standards is something that we have been doing in the past also, but fresh we will be again committing ourselves to certain standards, service levels that will be published from time to time. And we are also committed to reducing the cost of compliance. From the taxpayers, we have some very simple expectations. Be honest and compliant, be informed, keep accurate records,
know what your representative is doing, respond in time to the department's various communications, and pay in time. Pay your correct amount of tax and on time. So these are very simple expectations from the taxpayers as well. Given this entire approach to not just reform the department, but also to transform the tax administration, both from the side of the departmental officers as well as from the taxpayers and their representatives, we are now looking forward to an era of cooperation where the assessment procedure would become completely faceless. Now, when we say faceless, I need to tell you that it is a procedural part that has been affected by this scheme. What we have simply done is that the assessee does not see the face of the person who is actually, in a metaphorical sense, let me say, that he communicates only through electronic mode with the department and vice versa. So the jurisdiction of the assessment of the assessee can be given to can be assigned to an assessment unit anywhere all over the country. So it basically, for the assessment purposes, it's the whole entire country is your jurisdiction. Any assessment unit can be assigned. Second part which we are committed to is because we have made it a sort of a team effort. It's a team effort. So there will be assessment units, there will be technical units, there will be a verification unit and another review unit. So which Mr. Shablani will explain just now. So basically what I'm trying to tell you is that the assessment is a team effort. Therefore, we promise better quality order. Senior level officers would also be involved. So more objective, merit-based additions will be made. Assessee will be given an opportunity to look at the additions that are being made in his case and react and give his reaction to that and respond to that. Of course, the detailed scheme, now I will pass on the baton to Mr. D.K. Chablani, who will explain the scheme in detail. How exactly are you expected to work in this faceless scheme? After he is finished with his presentation, we would love to answer your queries in this regard. Thank you. Thank you, ma'am, you have set the tone for the today's session. So it makes my job all the more easier now. Am I audible? Yes, yes. Yeah. So I'll start with my presentation. As far as I'm concerned, I am working with the faceless scheme since last year, October 19. So I'll also be in a position to answer your concerns and queries on this subject. But nevertheless, the old scheme that was announced last year has undergone some changes in terms of not only the expansion towards the entire department, but also certain provisions have got changed. So I'll be covering the recent provisions as they exist, as amended now. Can you please put on the next slide? So as regards the citizen charter announced by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, let me clarify that this is called taxpayer charter. And earlier in 2014, we used to have a citizen charter. The citizen charter used to be advisory. No consequences for default. But taxpayer charter that has been announced now, it has a legal basis. I mean, as per the budget of 2020. Sir, can I interrupt a bit, because some members in the audience are stating that if also you can mix it up with Hindi, because they also, you understand, sir, some people are calling for Hindi. Jitna Hindi ho sakta hai, sir, if you can try. Thank you, sir. Okay. So टैक्सपेयर चार्टर जो इस साल लागू किया गया है उसका लीगल बेसिस है और एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 119A में,
और बजट 2020 में इसको ऑनरेबल एफएम ने अनाउंस किया था और 13 अगस्त से इसको लॉन्च किया गया है. सो there is a legal enforcement of this taxpayer charter, unlike the citizen charter that you used to have earlier. Now, as far as the faceless assessment scheme is concerned, as the ma'am has already told, जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है ये सेंट्रल में जो केसेस असेस होते हैं सेंट्रल चार्जेस में, और जो इंटरनेशनल टैक्स में असेस होते हैं केसेस, मतलब जिनका पैन सेंट्रल में है या पैन इंटरनेशनल टैक्स में है, उनको छोड़ के बाकी सारे पैन्स, बाकी सारे असेसिस के ऊपर ये फेसलेस सिस्टम लागू होगा. सो मैं अब आपको ले चलता हूँ जो अमेंडमेंट किए गए हैं. ये सेक्शन 143 3A और 3B जो है लास्ट ईयर ही आ गए थे, और उसके हिसाब से जो उसका मैंडेट था, जो उसके माध्यम से कहा गया था कि डिपार्टमेंट इज फ्री टू कम आउट विथ सम स्कीम. एक स्कीम लाएगा डिपार्टमेंट जिससे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेस को एलिमिनेट किया जाएगा, जिसको हम फेसलेसनेस बोलते हैं. और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, मतलब स्पेशलिस्ट भी रहेंगे इसमें, और डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पे काम होगा. एक काम एक यूनिट करेगी, दूसरा काम दूसरा यूनिट करेगी, तीसरा काम तीसरा यूनिट करेगी. इस तरह से ये चीजें डिवाइडेड भी हैं आपस में. ऐसा नहीं है कि आपका जो फाइल है, आपका जो रिटर्न है, आपका जो स्क्रूटनी है, वो एक ही अफसर देख रहा है. असेसमेंट यूनिट की जहां तक बात करें तो असेसमेंट यूनिट में आपका ज्वाइंट कमिश्नर है, हेड करता है यूनिट को, और उसके नीचे आईटीओ या एसी होते हैं. तो ये दोनं आपस ज्वाइंट सीआईटी के अप्रूवल से ही नोटिस इशू होती हैं, और ऑर्डर भी ज्वाइंट कमिश्नर के अप्रूवल से पास होता है. तो दो लोग ये अपनी यूनिट में हो गए, असेसमेंट यूनिट में. इसके साथ साथ हमारे पास वेरिफिकेशन यूनिट भी है, टेक्निकल यूनिट भी है, और एक रिव्यू यूनिट भी है. जब इतनी चीजों के थ्रू आपका असेसमेंट पास होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं पे भी किसी भी किस्म की बायास का कोई चांस नहीं है. और इसमें ये भी कोई कंसर्न नहीं रहना चाहिए कि हाई पिच एडिशंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये भी मैंडेट दिया गया है कि जस्ट एंड फेयर असेसमेंट करना है. तो यदि किसी ने थोड़ा बहुत भी बायास दिखाया तो दूसरा यूनिट उसको टोन डाउन कर देगा. तो हम न सिर्फ अंडर असेसमेंट को वेरीफाई करके एक प्रॉपर असेसमेंट तक ले जाएंगे, बल्कि कोई हाई पिच्ड असेसमेंट होगा तो उसको भी नीचे ला सकते हैं इस टीम के माध्यम से. सो ई असेसमेंट स्कीम 2019 लास्ट ईयर हुई थी, जिसमें 58,320 केसेस असाइन हुए थे. दिस वाज इसको पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, और इसमें 25 पीसीआईडीज थे टोटल मिला के फील्ड में, जिसमें से मैं एक था. और इसकी सक्सेस को देखते हुए हम आगे बढ़े हैं, और इस साल थोड़ा बहुत स्कीम में अमेंडमेंट किया गया है, और इसको पूरे इंडिया के ऊपर लागू किया गया है. नेक्स्ट. सो ये हमारा फेसलेस स्कीम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में टैक्स पेयर का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के साथ है, और उसको ये पता नहीं है कि पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं. उसके पास जो भी कम्युनिकेशन आएगा एनईएसी से आएगा, और वो जो भी जवाब देगा एनईएसी को देगा. टैक्स पेयर के साथ कम्युनिकेट करने के हमारे पास कई माध्यम हैं, जैसे कि हर एक टैक्स पेयर जो है आजकल ई फाइलर है, उसका अपना एक रजिस्टर्ड ई फाइलिंग अकाउंट है, और उस अकाउंट में ई प्रोसीडिंग में जाके वो ये चेक कर सकता है कि मेरे नाम से कोई नोटिस तो नहीं इशू हुई, या कोई जवाब उसको देना है तो वो उसी पोर्टल के माध्यम से जवाब भी देगा. टैक्स पेयर की ईमेल आईडी होती है, प्राइमरी आईडी होती है, सेकेंडरी आईडी होती है. आप जानते हैं इसमें टैक्स पेयर को थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा. जनरली लोग दोनों आईडीज जो होते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किसी सीए या वकील का दे देते हैं. तो वकील के पास तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ केसेस रहते हैं, तो वो हो सकता है कि किसी चीज को आपकी ओवरलुक कर दे. तो आप अपने वकील से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम प्राइमरी आईडी मेरा रखिए, प्राइमरी मोबाइल मेरा रखिए रजिस्टर्ड अकाउंट में, ताकि मेरे को इंटीमेशन मिलती रहे, और सेकेंडरी आप अपना रख लीजिए. उससे क्या होगा कि एसएससी को भी इत्तला होती रहेगी, और
इस वजह से होता क्या है कि कई सारी नोटिस जो होती हैं एसएससी को पता ही नहीं चलती हैं कि भाई मेरे पास आ गई हैं, और उनके सीए के पास आ रही होती हैं, या कई बार उन्होंने मेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत दिया होता है। तो ये अपना रजिस्टर्ड मेल अकाउंट में जो अपनी प्रोफाइल है आपको चेक करने की जरूरत है, ताकि इसमें यदि आपका कोई केस आता है तो आप उसको टाइम टू टाइम कंप्लाई कर सकें। सो नेशनल असेसमेंट के पीछे हम देखें तो ये असेसमेंट यूनिट्स हैं 95। 95 का मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि 95 यूनिट्स हैं, 95 प्रिंसिपल कमिश्नर्स हैं। 95 प्रिंसिपल कमिश्नर्स जो हैं दे आर मैनिंग द असेसमेंट यूनिट, और हर एक प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे 4 असेसमेंट यूनिट हैं। सो आप समझ सकते हैं कि एक्सपांशन कितना है इस चीज का। वेरिफिकेशन यूनिट में 35 पीसीआईटीज हैं, उनके अंडर में हर एक के अंडर में 3-3 वेरिफिकेशन यूनिट हैं। टेक्निकल यूनिट हैं 4, जिनके अंदर में हर एक में 3-3 टेक्निकल यूनिट्स हैं, जो हर एक यूनिट का मतलब एक असेसिंग ऑफिसर, आईटीओ या एसी, और उसके ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर। रिव्यू यूनिट में भी इसी तरह से 20 प्रिंसिपल कमिश्नर्स हैं, जिनके अंडर में 3 ईच यूनिट्स हैं। सो इस चीज में यह है कि नेशनल असेसमेंट ई असेसमेंट सेंटर किसी भी असेसमेंट यूनिट को इंडिया की कहीं पे भी लोकेटेड होगी उसको केस असाइन करेगा। फेसलेस का मतलब यह है कि हमको तो पता रहेगा कि हम किसका केस असेस कर रहे हैं। जिस भी असेसमेंट यूनिट को ये केस असाइन होगा तो उसको तो पता रहेगा कि किसका केस असेस हो रहा है, लेकिन असेसी को ये पता नहीं रहेगा कि मेरा केस कौन कर रहा है। और असेसमेंट यूनिट को यदि कुछ वेरिफिकेशन करवाना है या टेक्निकल मैटर कोई रेफर करना है, बिकॉज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर यदि हम बात करें तो स्पेशलिस्ट हमारे बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे किसी भी ट्रिकी इशू के ऊपर एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन की बात हो, फॉरेंसिक की बात हो, अकाउंटिंग की बात हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, कोई वैल्यूएशन रिलेटेड है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों के ऊपर हमारे पास टेक्निकल यूनिट में स्पेशलिस्ट रहेंगे, जो आपको टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आंसर देंगे असेसमेंट यूनिट को। इससे ये भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि असेसमेंट यूनिट वेरिफिकेशन और टेक्निकल और रिव्यू आपस में बात कर सकते हैं, नहीं। इनका सब कुछ वार्तालाप जो होगा एनईएसी के थ्रू होगा। असेसमेंट यूनिट कुछ भी करेगी, एनईएसी को भेजेगी कि भाई मुझे वेरिफिकेशन कराना है, और फिर वो एनईएसी जो होगा वेरिफिकेशन को दे देगा। सिमिलरली वेरिफिकेशन अपना काम खत्म करके एनईएसी को भेज देगी, और फिर एनईएसी को पता है कि ये किस असेसमेंट यूनिट में केस चल रहा है तो उसको वापस भेज देगी। इस तरह से ये यूनिट्स आपस में भी बात नहीं करेंगे। भले ही हम लोग एक बिल्डिंग में भी रहेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि किसके पास कौन सा केस है। So case will be handled only on merits, not on the basis of any prejudices if at all perceived by anyone. So ये इसके 4 मूल पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। नो ह्यूमन इंटरफेस, डायनामिक जुरिसडिक्शन मतलब किसी के पास भी केस जा सकता है, टीम बेस्ड वर्किंग है, कोई एक आदमी आपका असेसमेंट नहीं कर रहा है, पूरी टीम कर रही है, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के आधार पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी ऑर्डर होगा जस्ट एंड फेयर होगा, आपके एसएससी के भी उतना ही पक्ष में होगा जितना कि डिपार्टमेंट के पक्ष में होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो मैंने आपको ये चार्ट पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, तो इसलिए इस चीज को मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज बताने की जरूरत है कि जब रिव्यू यूनिट के पास केस जाता है और वो यदि कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करता है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में जो असेसमेंट यूनिट ने सबमिट किया है, मैं बड़े शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। AU मींस असेसमेंट यूनिट, VU मींस वेरिफिकेशन यूनिट, RU मींस रिव्यू यूनिट, और एक है आपका टेक्निकल यूनिट TU। सो AU जब भी आपका रिव्यू यूनिट असेसमेंट यूनिट के किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा तो डिपार्टमेंट की अभी ये नई पॉलिसी आई है कि रिव्यू ने कुछ सजेस्ट किया तो हम इसको दूसरी AU को असाइन कर देंगे, ताकि यदि पिछली AU ने कुछ भी ऐसा सोच के रखा हो कि भाई नहीं इसमें तो ये होना ही चाहिए, तो वो अपना कोई बायस नहीं रख पाएगा और नया AU अपना फ्री माइंड से उस चीज को एनालाइज करेगा, तो उससे फेयरनेस और बढ़ेगी। तो वेरिफिकेशन यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं कि PCIT VU जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी गई है 133(6) में, जिसके पास ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है, और इसको हम लोग ऐसी जगहों पे रखेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ओवर द टेरिटरी, क्योंकि इन लोगों को वेरिफिकेशन यूनिट्स को एक स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से कुछ पावर्स दिए जाने हैं, जिसमें ये
चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा लिए बिना फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल वेरिफिकेशन के दायरे में काम कर सकते हैं। लेकिन वो सब चीजें इनके खुद के डिस्क्रिप्शन पर नहीं डिपेंड करेगी, वो NESC अपनी गाइडलाइंस बनाएगा बोर्ड के अप्रूवल से, और उन परिस्थितियों के अनुसार यदि कोई केस फिट होता है तो ही ये VU इलेक्ट्रॉनिक मोड को ड्रॉप करके फिजिकल की तरफ शिफ्ट होगा। अदरवाइज VU, AU, TU ये सब जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही बात करेंगे SSC के साथ। और कभी कभार जैसे पर्सनल हियरिंग का भी एक मुद्दा उठता है कि भाई पर्सनल हियरिंग की किसी को जरूरत है तो SSC और उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हियरिंग की डिमांड कर सकता है, लेकिन हर एक केस में पर्सनल हियरिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको जो क्वेश्चंस भेजे जाते हैं या आपका जो रिप्लाई आता है रिकॉर्ड पे वो पर्याप्त होता है किसी भी असेसमेंट को पूरा करने के लिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि पर्सनल हियरिंग की जरूरत हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिनको नोटिफाई किया जाएगा कि इन परिस्थितियों में चाहे वो बोर्ड की अप्रूवल से ही परिस्थितियां आएंगी और चाहे तो अपना जो चीफ कमिश्नर है उसके अप्रूवल से पर्सनल हियरिंग की इजाजत दी जा सकती है। सो ये वेरिफिकेशन यूनिट के पास काफी सारे पावर्स हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये सब चीजें जो हैं आमतौर पे वेरिफिकेशन यूनिट जो करेगी ये फेसलेस मैनर में ही करेगी, और जहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का सवाल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। सो कहीं पे ये नहीं है कि हमको फिजिकल इंक्वायरी करनी है, जहां पे बहुत जरूरी होगा और परिस्थितियों के अंदर केस फिट होता है तो वहां पे हम SSC को बुला सकते हैं या ऑफिसर फील्ड में जाके वेरीफाई भी कर सकता है। तो मतलब ऑप्शंस खुले रखे हैं, लेकिन कभी भी जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही कम्युनिकेशन होगा, और कोई भी कम्युनिकेशन जो होगा थ्रू NESC होगा एक्सेप्ट फॉर द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जब होगा तो नेचुरली SSC हमारे वेरिफिकेशन ऑफिसर के सामने खुद को प्रस्तुत करेगा। तो अब इसमें रिव्यू यूनिट के पास जाता है असेसमेंट ऑर्डर का ड्राफ्ट। ये SSC के पास पहले नहीं जाता है, पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू यूनिट के पास जाता है। रिव्यू यूनिट का काम है कि भाई जो कुछ भी रिकॉर्ड पे तथ्य हैं या जो कानून है उस हिसाब से असेसमेंट किया गया है, जिस रीजन के बेसिस पे आपका केस सेलेक्ट हुआ था उनको पूरी तरह से देख लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जरूरत से ज्यादा एडिशन कर दिया गया है या जरूरत से कम कर दिया गया है। जो जुडिशियल डिसीजंस है उनको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, और गणित जो बोलते हैं कि कैलकुलेशन जो है वो ठीक किया है नहीं किया है। सो हर एक यूनिट में आपको ये बता दूं कि ITO और AC के ऊपर एक यूनिट हेड होता है, वो उसके अप्रूवल के बिना उस यूनिट से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। तो दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही चीजें बाहर जाएंगी, तो इसलिए छोटी टीम और फिर बड़ी टीम्स, इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बटा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये हम आपको बता सकते हैं स्लाइड के माध्यम से कि करंट और फेसलेस असेसमेंट में क्या फर्क है। सो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं पॉइंट्स, उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा कि कोई डिस्क्रिशन नहीं है सिलेक्शन करने का। सिलेक्शन आपको मालूम है कि टाइम से करीब 10 साल से हमारा सिलेक्शन कंप्यूटर एडेड सिलेक्शन है, जिसको कैश सिलेक्शन बोलते हैं, जिसमें पैरामीटर्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं, और ये किसी को, हमें भी पता नहीं होता, SSC को पता होने का कोई सवाल ही नहीं है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। पर केस अपना उस कंप्यूटर जनरेटेड, मशीन जनरेटेड क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है आपका केस। कोई आदमी अपना दिमाग लगा के कोई केस सेलेक्ट नहीं करता। और रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस है, मतलब कि किसको जाएगा पता नहीं, वो मशीन में एक फार्मूला डाला हुआ है, एक पहला केस किसी को दे देंगे, दूसरा किसी को दे देंगे, फिर देखेंगे कि भैया हाँ किसके पास पूरे हो गए हैं तो फिर किसी और को देते रहेंगे जब तक कि सबके पास इक्वल क्लोज आ जाए। तो नोटिस जितनी भी होंगी आपको कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि इस समय केस असेसमेंट यूनिट में पड़ा है या वेरिफिकेशन में पड़ा है, क्या पड़ा है। आपके पास जो नोटिस आएंगी सीधे NESC से आएंगी, और आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है कि विद इन द फेसलेस सेटअप कौन आपका काम कर रहा है और किस स्टेज में है।
और NESE आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन की इसमें जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको स्कीम समझाने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो समझाया है मैंने, अदरवाइज SSC को सिर्फ NESE से ही संपर्क रखना है। नेक्स्ट प्लीज। सो नो फिजिकल मीटिंग, कोई व्यक्तिगत तौर पे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, और आ भी गए तो आप किससे मिलेंगे। तो नो मोर वेटिंग, कोई वेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जब आप अपने कंफर्ट में हैं अपना क्वेश्चनियर का जवाब बनाइए और उसको अपलोड कर दीजिए घर बैठे हुए। तो कोई ऑफिस में जाके वेट करने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर से कोई जान पहचान है उसके परिचय जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, असेसमेंट टीम से हो रहा है। और हम बॉटम लाइन जो इंश्योर कर सकते हैं वो ये है कि जो ऑर्डर होगा वो फेयर और जस्ट ऑर्डर होगा, और उसमें ऑफ कोर्स अपील वगैरह का तो ऑप्शन रहता ही है, लेकिन आमतौर पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का ग्रीवेंस ऑर्डर को लेके अदरवाइज डेवलप होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो ये स्लाइड इस बारे में बता रही है कि रेसिडुअल हायरार्की क्या करेगी। रेसिडुअल हायरार्की का मतलब ये है कि हमारे काफी सारे ऑफिसर्स, चीफ कमिश्नर से लेकर डाउनवर्ड्स ITO और इंस्पेक्टर लेवल के सारे ऑफिसर्स काफी सारे RESEs में शिफ्ट किए जा रहे हैं। इतने सारे ऑफिसर्स जब शिफ्ट किए जा रहे हैं तो, और फंक्शन हमें समझ लेना चाहिए कि फेसलेस का काम क्या है, सिर्फ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को डील करना। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को डील करने का मतलब है कि कहीं कोई पेंडिंग असेसमेंट है, चाहे वो 143(3) में हो, चाहे रीओपन्ड असेसमेंट हो, चाहे सेटिसाइड असेसमेंट हो, कोई भी असेसमेंट हो, जब पेंडेंसी उसकी फील्ड में क्रिएट हो जाएगी तो वो फेसलेस में आएगा। लेकिन पेंडिंग असेसमेंट खत्म करने के बाद फेसलेस सेटअप अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वापस फील्ड में भेज देगा। तो फील्ड अभी भी रहेगा, फील्ड में ऑफिसर्स रहेंगे, और आपको पता रहेगा कि आपका फील्ड में ऑफिसर कौन है, जिसको हम बोलते हैं पैन AO। पैन AO जो है आप पता कर सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल में होम पेज पे ही एक लिंक बना हुआ है कि अपना पैन डालिए और आपको पता चलेगा कि कौन AO है। और वो नॉर्मल जो पुराना AO है वही होने की उम्मीद है, लेकिन हाँ, चूंकि कुछ चार्जेस आपस में मर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए आपका पैन जो होगा एक फील्ड ऑफिसर से चेंज होकर दूसरे फील्ड ऑफिसर में शिफ्ट हो सकता है। तो अपने नए फील्ड ऑफिसर का डेजिग्नेशन जानने के लिए आप 2-3 हफ्ते बाद चेक कर सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल में कि अब आपका नया AO क्या हुआ। जो रहेगा तो तकरीबन वो परमानेंट रहेगा। बाकी सारे मैटर्स उसमें लिखे हुए हैं कि रेक्टिफिकेशन है, पेनल्टी है। जैसे कि फेसलेस सेटअप की बात करें तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान यदि नॉन कंप्लायंस है तो उसकी पेनल्टी तो फेसलेस सेटअप वाले करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई और पेनल्टी इनिशिएट होती है जैसे कंसीलमेंट पेनल्टी, तो वो फील्ड वाले ही उसको लेवी करेंगे, और उसके वेवर और इम्यूनिटी की बातें भी वो ही आपसे डील करेंगे। वहां पे आपको पता तो रहेगा कि कौन हमारा नॉर्मल AO है, जैसा कि आपको अब तक पता रहता है, लेकिन उनको भी एक हिदायत दी गई है कि जहां तक हो सके आप भी फेसलेस मैनर में काम करिए। मतलब कि यदि आप नोटिस अपना देते हैं तो कोई जरूरी नहीं पोस्ट का इस्तेमाल करें, आप उनको SSC को ईमेल कीजिए। SSC भी क्या करेगा, अपना जवाब जो देना होगा वो ईमेल के माध्यम से देगा। उसमें भी फिजिकल अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं, जहां तक हो सके। तो आप यदि कोई आपको बुलाते भी हैं, एक्सेप्ट फॉर द केसेस जहां पे आपको कोई ओरिजिनल प्रस्तुत करना है या फिर हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, तो वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आप कह सकते हैं कि भाई मैं अपना जवाब इलेक्ट्रॉनिकली दूंगा। तो फेसलेस हम तो कंप्लीट सेटअप में काम करेंगे, लेकिन जो फील्ड भी होगा उसको भी हिदायत दी गई है कि आप अधिक से अधिक फेसलेस मैनर में काम करें। सो फील्ड आपका जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो आपसे कलेक्शन और रिकवरी के मामले में संपर्क करेगा। पुराने कोई जुडिशियल डिसीजंस हैं आपके केस में कि भाई CIT अपील का रिलीफ है या ITAT का है या हाई कोर्ट का है, वो सबका अपील इफेक्ट देगा। कोई रिफंड का मैटर है, और इन्हीं अपीलेट अथॉरिटीज के पास यदि इसको कोई जाके रिमांड रिपोर्ट वगैरह देनी है तो ये सब काम वही करेंगे। अपील फाइलिंग और सारे जितने भी मतलब अभी तक काम हुए हैं सिवाय असेसमेंट प्रोसीडिंग के, वो सारे अभी भी आपका फील्ड में जो असेसिंग ऑफिसर है वो देखता रहेगा। नेक्स्ट।
सो फील्ड में और भी जो चीजें रहेंगी वो इस स्लाइड में है कि 263, 264 जिसमें पीसीआईटी को रिवीजन करने का पावर है वो भी फील्ड में रहेगा, प्रोसिक्यूशन मैटर्स फील्ड में रहेंगे, और बॉटम लाइन जो सबसे नीचे लिखी हुई है एज फार एज पॉसिबल इन द फेसलेस मैनर। सो सारा केस रिकॉर्ड्स, पुराना फाइल सिस्टम, सब कुछ फील्ड में पीसीआईटी के या असेसिंग ऑफिसर के पास रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो केसेस कवर्ड बाय फेसलेस, मैंने आपको बताया कि असेसमेंट जहां पेंडिंग है, तो असेसमेंट कब पेंडिंग होता है, जैसे 148 नोटिस इशू होती है, 143(2) नोटिस इशू होती है, या रिटर्न फाइल करने के लिए 142(1) नोटिस इशू की गई है और असेसी ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो दूसरी नोटिस के माध्यम से हम उससे कोई इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ता है। असेसी बाद में आया तो 143(3) हो जाता है, नहीं तो 144 जिसको बेस्ट जजमेंट एक्स पार्टी असेसमेंट बोलते हैं वो हो जाएगा। और सिमिलरली ये 148 और 143(2) बेसिकली हैं, और जो कोर्ट्स के द्वारा सेटिसाइड या पार्टली सेटिसाइड केसेस होंगे वो भी फेसलेस में जाएंगे। जैसे ही ये पेंडेंसी फील्ड में क्रिएट होगी, फील्ड ऑफिसर अपना सारा रिकॉर्ड जो है, उसमें काफी हद तक हमारा डिजिटल ऑलरेडी हो चुका है, सारा रिकॉर्ड फेसलेस में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। सो इसमें एनईएससी के विदिन जो हमारा सेटअप है उसमें एयू असेसमेंट यूनिट है। सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चनर इशू करेंगे तो क्वेश्चनर जो होगा वो एनईएससी में भेजेगा, एनईएससी वहां से अपने डिजिटल साइन से एसएससी को भेजेगा, जिसकी एक कॉपी एसएससी के फाइलिंग अकाउंट में रख दी जाएगी, जिसको कभी भी लॉगिन करके देख सकता है। दूसरा मेल से जाएगी और साथ में एक एसएमएस का अलर्ट भी जाएगा कि आपको एक नोटिस भेजी गई है, कृपया देख लीजिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है असेसमेंट के दौरान, उसकी नोटिस एयू इशू करेगा जिसको वो केस किया है, और वेरिफिकेशन करवाना होगा तो वो यू को रिफर करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो टीयू को रिफर करेगा। और फिर एसएससी के पास जब भी कोई नोटिस आती है तो अपना रिस्पांस एनईएससी को देगा। और इसमें टेक्निकल यूनिट और वेरिफिकेशन यूनिट भी कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी टेक्निकल यूनिट के पास जाएगा, कभी किसी और के पास जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। और ये सारी यूनिट्स अपना अपना रिपोर्ट एनईएससी को देंगी, और एनईएससी को पता है कि किसके पास कौन सी एयू के पास केस है, वहां पे वो भेज दिया करेंगे। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यस, नेक्स्ट प्लीज। प्रीवियस प्लीज, सॉरी। सो हर एक केस में क्या होता है कि जब आपका नोटिस जा चुका है और आपने रिप्लाई दे दिया है तो एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनेगा। मैंने इसकी स्कीम में ये चीज कानून में ला दी गई है कि आपका ऑर्डर पास होने से पहले आपको वो दिखाया जाएगा कि हम क्या उसमें करने वाले हैं। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, वो एक बार नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बार भी बन सकता है बिफोर इट बिकम्स अ फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। सो उसमें हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी पेनल्टीज को इसमें लगाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ये सब चीजों के साथ जब ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट में बन जाएगा तो वो आरएमएस में जाएगा। थर्ड बुलेट में देखेंगे आप, आरएमएस का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे जो स्क्रूटनी के क्राइटेरिया हैं वो मशीन ड्रिवन है, वो वहाँ पे फेड हैं ऑलरेडी। उनको पता है कि किस पॉइंट पे केस सेलेक्ट किया गया था और किस किस्म का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बन किया गया है। और उसमें दो चीजें देखेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कम एडिशन हुआ या ज्यादा एडिशन हुआ। कोई भी इरेगुलरिटी दिखेगी रिस्क मैनेजमेंट को तो रिस्क मैनेजमेंट उसको फ्लैग करेगा उस हिसाब से। तो आउटकम जो है रिस्क मैनेजमेंट का, उस नीचे वाले 3 सब बुलेट्स में लिखा हुआ है कि यदि कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है विथ रेफरेंस टू रिटर्न इनकम, मतलब जो रिटर्न भरा था वैसा ही ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है और कोई एडिशन नहीं किया गया है, रिटर्न इनकम लेट्स से हैज बीन एक्सेप्टेड, देन रिस्क मैनेजमेंट विल गिव अ ग्रीन फ्लैग एंड order will be simply signed by the NESC and it will be delivered to the assessor. Similarly, यदि कोई ऑडिशन या मॉडिफिकेशन उसमें प्रपोज किया गया है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में तो एक शो कॉज जाएगी। शो कॉज नोटिस के अंदर ही ड्राफ्ट असेसमेंट का कॉपी पेस्ट रहेगा। तो आपको बताया जाएगा कि क्यों ना आपका ये ऑर्डर जो है ड्राफ्ट असेसमेंट के हिसाब से फाइनल कर दिया जाए। शो कॉज नोटिस के साथ आपको ड्राफ्ट भी देखने को मिलेगा कि ये आपका हम लिखने जा रहे हैं आपके ऑर्डर में,
तो आपको जो भी कहना हो आप कहिए। और दूसरा ये है कि रिस्क मैनेजमेंट ने ये देखा कि भाई नहीं कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ ज्यादा एडिशन कर दिया गया है या कम किया गया है, तो रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा आउटकम जो है वो ये डिसाइड करेगा कि इसको केस को हमें रिव्यू में भेजना है। आमतौर पे रिव्यू यूनिट्स उतने नहीं हैं हमारे पास जितने की असेसमेंट यूनिट्स हैं, तो करीब करीब आप ये मान सकते हैं कि 10% केस रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो रिव्यू के लिए जब जाएगा तो रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू यूनिट में क्या है, वही जेसीआईटी एक है और उसके नीचे आईटीओ है। तो आईटीओ अपने जेसीआईटी से डिस्कस करके जो एयू ने ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनलाइज किया है उसको दोबारा से चेक किया जाएगा कि क्या इसमें गड़बड़ है, क्योंकि आरएमएस ने इसको रिव्यू के लिए भेजा है तो जरूर इसमें कोई बात है। तो उसको वो देख के उसको फाइनलाइज करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल रिव्यू की तरफ से जब वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फाइनल होगा तो फिर प्रावधान ये है कि उसको हम पुरानी असेसमेंट यूनिट में न भेज के नई असेसमेंट यूनिट में भेजेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो रिव्यू यूनिट के पास क्या ऑप्शन है? रिव्यू यूनिट कह सकती है कि भाई जो आया था ड्राफ्ट वही ठीक है, तो क्या करेगी, एनईएसी को भेज देगी। एनईएसी देखेगा कि भाई कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो ऑर्डर फाइनल कर देगी। कोई मॉडिफिकेशन प्रस्तावित था जिसके बाद ये आरएमएस और रिव्यू से होके आया है, तो कोई मॉडिफिकेशन इसमें प्रस्तावित है तो इसमें शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस चली जाएगी एसएससी को कि भाई आपको बताइए कि इसका आपका डाउ के हिसाब से ऑर्डर क्यों न किया जाए। मान लीजिए रिव्यू उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये फ्रेश एयू के पास जाएगा। फ्रेश एयू जब उसको कंसीडर करेगी और उसके बाद वही सिचुएशंस हैं, ये ब्लू वाले जितने भी मैंने बना रखे हैं सब एक ही ऑप्शंस हैं जो बार बार आ रहे हैं कि एक बार वो अपना फाइनल डीओ बनाएगी फ्रेश एयू, तो फाइनल डीओ भी का भी वही आउटकम्स हैं कि यदि कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो पार्टी को दे दिया जाएगा ऑर्डर बना के, नहीं तो मॉडिफिकेशन होगा तो शो कॉज नोटिस दी जाएगी। सो कई बार ऐसा भी होगा कि शो कॉज नोटिस देने के बाद और एसएससी का जवाब आने के बाद ड्राफ्ट ऑर्डर में फिर से कोई मॉडिफिकेशन, किसी भी किस्म का मॉडिफिकेशन होता है। हो सकता है हम इनकम को कम करें, इनकम को ज्यादा भी कर सकते हैं, कई बार रिप्लाई में ऐसी कोई चीज आती है तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा, नया मॉडिफिकेशन है और उसमें कुछ एनहेंसमेंट टाइप का है, तो वो फिर से एसएससी को शो कॉज एक नया ड्राफ्ट ऑर्डर बना के दिया जाएगा। इस तरह से एक दो नहीं बल्कि 3 ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स आपको दिए जा सकते हैं गिवन केस में। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ही फाइनल हो जाए और हम आपको बताने की भी जरूरत न पड़े क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो एनईएसी चुपचाप ऑर्डर पास कर देगा। आपको ड्राफ्ट ऑर्डर भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा सिवाय इसके कि आपकी रिटर्न इनकम एक्सेप्ट कर ली गई है। नेक्स्ट प्लीज। सो अब इसमें क्या है कि मोड चूंकि फिजिकल डिलीवरी का नहीं रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारे डिपार्टमेंट में पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि सारी प्रोसीडिंग्स वैसे भी ई प्रोसीडिंग के नाम पे चल रही हैं कि ई नोटिस जाता है और ई कंप्लायंस आता है। तो आप यदि अपनी नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो नेचुरली एक एक्स पार्टी ऑर्डर होता है सेक्शन 144 में, उसका आपको शो कॉज दिया जाएगा और उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए एक फिर से ड्राफ्ट असेसमेंट इसमें भी बनाया जाएगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बिहाइंड द बैक कुछ भी हमने ड्राफ्ट करके ऑर्डर जमा दिया, ऐसा नहीं होगा। ड्राफ्ट ऑर्डर इसमें भी बनाया जाएगा और वो भी फिर आपको बताया जाएगा कि भाई आप ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपने कोई मटेरियल नहीं दिया, ये रहा आपका ऑर्डर, अब आप बताइए कि क्यों नहीं ये ऑर्डर फाइनल कर दिया जाए। और फिर इसको भी आरएमएस में भेजा जाएगा और ये उसकी भी वही जर्नी होगी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे केसेस होंगे, क्योंकि 2 मेल आईडीज पे कम्युनिकेशन जा रहा है, एसएमएस पे जा रहा है, एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट में नोटिस की कॉपी डाल दी जा रही है, तो ऐसे केसेस होंगे जिसमें कि 144 करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज और भी मैं बता दूं कि सीआईटी अपील भी अब फेसलेस होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका 144 का ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद सीआईटी अपील फेसलेस में जाएगा, तो यदि आपका वाकई में नॉन कंप्लायंस है तो हाई चांस है कि वो 144 ऑर्डर कंफर्म हो जाए आपका।
मतलब ये नहीं फिर आप समझ सकते हैं कि हम सीआईटी अपील के पास में आपको एविडेंस दे देंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। फेसलेस सीआईटी अपील्स आर आल्सो गोइंग टू बी वर्किंग इन जस्ट एंड फेयर मैनर। वो हमारे ऑर्डर को भी पढ़ेंगे कि वाकई में अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, तो 144 ऑर्डर आपका कंफर्म भी हो सकता है। इसीलिए मेरी एडवाइस है सब लोगों को कि आप अपने नोटिस का कंप्लायंस जरूर करें और इस बेस्ट जजमेंट ऑर्डर से बचें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जैसे हम पेपर में बात करते हैं कि साइन की जरूरत होती है कि हमारी नोटिस साइन होकर आती है आपके पास, एसएससी भी अपनी तरफ से साइन करके भेजता है और हम ये मानते हैं कि ये अब फुल प्रूफ हो गया। अब जहां तक इलेक्ट्रॉनिक का सवाल है कि एनईएसी की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन आएगा वो डिजिटली साइंड होगा। और एसएससी की तरफ से दो किस्म के एसएससीज हैं, कुछ लोग जो डिजिटल सिग्नेचर के अंडर अपना रिटर्न भरते हैं, जैसे कि कंपनीज वगैरह के केस में है, तो उन केसेस में जो भी चीजें उनको जवाब के तौर पे फेसलेस अटेम्प्ट को भेजनी है वो डिजिटली साइन करके ही भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उनको रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करना होता है डिजिटल साइन में, तो वो लोग डिजिटल सिग्नेचर यूज करेंगे। बाकी लोग, जिन लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और जिन लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम डिजिटल मोड में डिजिटल सिग्नेचर के अंडर फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि एक ईवीसी जनरेट होता है विच इज कई उसके तरीके हैं, बट एक बहुत कॉमन तरीका है आधार बेस्ड, कि आपके आधार में ओटीपी आ जाएगा और आप वो ओटीपी यहाँ पे फीड कर देंगे तो इट विल बी कॉल्ड ई सिग्नेचर एंड इट इज डीम्ड टू हैव बीन ऑथेंटिकेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Has it been completed? So maybe that next slide is not coming up on the screen, so I'll explain you about the personal hearing. पर्सनल हियरिंग में क्या है कि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, ज्यादातर लिखित में जो जवाब आया है उसको देख के हम असेसमेंट करना चाहते हैं, इसलिए कुछ परिस्थितियां नोटिफाई की जाएंगी कि इन परिस्थितियों में पर्सनल हियरिंग दी जा सकती है, और अदरवाइज सारा कुछ इवन पर्सनल हियरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। और पर्सनल हियरिंग जब दी भी जाएगी विशेष परिस्थितियों में तो भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम एसएससी या उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे कि भाई क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या हम पूछना चाहते हैं, जो भी होगा, तो उसके बाद असेसमेंट फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो परिस्थितियां अभी आ जाएंगी, धीरे धीरे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे उन सबके, पर उसका पावर अभी स्कीम में दे दिया गया है एनईएससी को कि जो बोर्ड के अप्रूवल से ये परिस्थितियों को नोटिफाई करेगी। सो आई थिंक माय प्रेजेंटेशन इज नाउ ओवर and over to the hosts please. Thank you. I would like to sum up जो छाबलानी साहब ने पूरे डिटेल में बताया है उसका सार और तत्व ये है कि पहले जो हम ऑफिस में जाकर के फिजिकल अपीयरेंस होता था और फिजिकली रिप्लाई फाइल करते थे, अब वो नहीं होने जा रहा है। सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा और क्वेश्चनायर भी जो एसएससी को जाएगी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाएगी, ईमेल से जाएगी, और एसएससी को ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई करना है। कोई डायरेक्ट टच नहीं रहेगा असेसिंग ऑफिसर और एसएससी के बीच में। इनफैक्ट एसएससी को ये पता नहीं चल रहने वाला है कि असेसिंग ऑफिसर कौन है। तो इस तरह हम लोग एक फेसलेस मैनर में सारा काम करेंगे, ग्रुप का, टीम का काम होगा, और एक एक ऑर्डर को कई जगह से गुजरेगा, 4 जगह से गुजरने वाली है, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट। तो किसी भी एसएससी को किसी भी तरह का शिकायत का कोई मौका नहीं रहेगा, कोई बायसनेस नहीं रहेगा। हर किसी को ये संतुष्टि होगी क्योंकि उनको ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा कि भाई ड्राफ्ट ऑर्डर में क्या है, दे विल नो, एडवांस उनको पता चलेगा कि क्या है केस में। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर वो रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह एसएससी की सारी समस्याएं जो है इससे खत्म हो जाने वाली हैं, और ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एसएससी को भी पता होना चाहिए कि जो वो कर रहा है उसको वो डिस्क्लोज करने वाला है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं देन उनके लिए फिर एज पर चार्टर फिर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए एसएससी को सजग रहना है और अपने ईमेल वगैरह चेक करते रहना है, सो दैट कुछ भी चिट्ठियां जो है, अपने एसएमएस भी देखते रहना है कि कोई भी मैसेज आया है उनको भी इग्नोर ना करें, और जो भी ट्रांजेक्शन्स या उनके खर्चे बर्चे हैं वो सारे के सारे चीजें जो है अपने अकाउंट्स में डालेंगे ताकि ट्रू और फुल डिस्क्लोजर ऑफ इनकम हो सके।
तो ये हमारी तरफ से बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए देख सकते हैं मैडम कुछ कहना चाहें। Thank you so much, Lekha ji, Rajesh Prasad ji, Chablani Saab for this lovely presentation. Now I would request that we have received some questions from the members, so if I can take a few of them, and if you could just give your views on the same. Some of the members have asked that, if the e-notice is sent by the department and if it is not received by the concerned, maybe the gentleman has closed that email or something, will this also come through the SMS or the something, or is it possible that they can register their official email IDs with the department so that it comes only on those? Sometimes, there are people who have habits of changing emails down the line, and it shouldn't become that they don't receive the notices or anything which have been sent by the department. I answer this question. Please. See, every assessee these days filing the returns, it is mandatory to file e-returns, first of all. So for filing the e-returns, they have to register themselves with the e-filing portal. पैन होता है, पासवर्ड होता है, जिसके माध्यम से वो अपने अकाउंट में एक्सेस करते हैं, रिटर्न को अपलोड करते हैं और बाकी चीजें भी देख सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या है कि उस रजिस्टर्ड अकाउंट में आपकी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल में भी जब भी आप हर साल लॉगिन करते हैं फ्रेश, क्योंकि साल में 1 या 2 बार तो करना ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं भी करें, क्योंकि जब नया रिटर्न भरना है तो फिर से हम लॉगिन करेंगे इस साल, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं क्या। तो प्रोफाइल चेंज करने की फैसिलिटी ई फाइलिंग पोर्टल पे दी गई है, जहाँ पे आपको 2 ईमेल, जिसमें से पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, वो देनी पड़ती है, और 2 मोबाइल नंबर भी देने पड़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये दोनों चीजें आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहती हैं। अब इसमें मान लीजिए साल दर साल आपको देखा जाए तो जब इंटीमेशन आती है आपको सीपीसी से, वो भी आपको उसी मेल पे आती है। तो यदि कोई चेंज हो गया है आपकी ईमेल में तो आप या मोबाइल में, तो आप उसको रजिस्टर्ड अकाउंट में अपनी प्रोफाइल चेंज में जाके कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिना ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन किए हुए यदि दूसरे माध्यम हम बताना चाहूँ तो ईमेल जो है उस पर डायरेक्ट भी आएगा, और आपको एक एसएमएस का रियल अलर्ट जरूर आएगा नोटिस के साथ कि आपको ये नोटिस ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। और दूसरा, आप अपने रजिस्टर्ड ई फाइलिंग अकाउंट में जाके दे सकते हैं, जिसको आप जितनी बार चाहें ईमेल अपडेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। इसमें सर एक दूसरी जो क्वेश्चन सबकी आ रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर फाइलिंग देयर रिटर्न्स। तो कभी कभी क्या काफी लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कैसे ये फाइलिंग होता है, क्या होता है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास काफी केसेस रहते हैं। तो उनका ये सिचुएशन है कि कभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भूल गया और आदमी को मालूम नहीं पड़ा। तो इसके अंदर जो दूसरा आपने जैसे सजेस्ट किया, तो दूसरा नंबर पार्टी को खुद का ही रखना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। और एक अपना मोबाइल अपना रहना चाहिए और एक अपना ईमेल आईडी रहना चाहिए, जिसमें आपके पास भी वो इत्तला आती रहे जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को जा रही है। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपको बोलना पड़ेगा। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि टैक्स पेयर जो खुद होता है उसको अपना पासवर्ड भी नहीं पता रहता। जी, आपकी बात तो पासवर्ड भी सीए को ही पता रहता है। तो आपको जाना पड़ेगा कि भैया आप मुझे प्रोफाइल दिखाइए, लेट मी चेक, लॉगिन करके, और मेरे को पासवर्ड मेरे को भी मेरे पास ही रहना चाहिए, या यदि नहीं है तो आप मुझे भी रहने दीजिए, और नहीं तो मैं चेक करूंगा कि प्रोफाइल में मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है सर। दूसरा सर एक जो सवाल था कि समझो कि एक फैमिली में 10-15 लोग रहते हैं, तो उनके सभी के जो रिटर्न्स फाइल होते हैं उसमें उनका ईमेल एक रह सकता है कि हर एक का अलग रहना चाहिए? एक रखने में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, वो आपकी सहूलियत की बात है। एक आईडी पे कितने अकाउंट टोटली आप डाल सकते हैं? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नेचुरली हम प्रिफर करेंगे कि कोई भी एसएससी है अपना अलग से मेल आईडी दे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस तरह का कोई सिस्टम में चेक नहीं रखा गया है कि आप वही मेल आईडी 2 या 3 या 4-5 लोगों के लिए दे रहे हैं। जी। अरे सर, ये कभी कभी क्या होता है कि जो आपके जो असेसिंग ऑफिसर है, स्पेशली आवर बिजनेस इज अ वेरी टेक्निकल बिजनेस एट टाइम्स,
and it is very important that the person understands the intricacies of the business who is assessing the part. Now say for some reason, you know, over these years, हर एक आदमी के पास ये ऑप्शन था कि ऑफिसर या किसी को समझा सके कि ये क्या ट्रांजैक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, जॉब वर्क है, तो ये होता था. अब समझो कि कोई बंदा बैठा है कोई एक जगह पे जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है, तो इसके लिए कोई ऑप्शन ऐसा रहेगा कि देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी व्हिच विल बी प्रोवाइडेड, व्हिच विल बी प्रैक्टिकली व्हाट आई वुड से इज कि उसको एक्सप्लेनेशन कर सके, क्योंकि अगर वो बंदा समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या है तो उसको क्या समझाएगा. देखिए, ऐसा मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि बंदा जो वहाँ बैठा है वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. हमारे ऑफिसर्स काफ़ी क्वालिफाइड हैं और हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर विशेष ट्रेड में उनको उतना ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो आपको प्रश्न के माध्यम से वो क्वेश्चनर इशू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने ट्रेड के बारे में बताएं, या कोई भी चीज़ जो है जिसको ऑफिसर जानना चाहता, समझना चाहता है, वो उसके ऊपर आपको इंगित करके बताएगा कि इस चीज़ के बारे में आप मेरे को और खुलासा कीजिए. तो राइटिंग में आप उसका जवाब दे सकते हैं. और लास्ट में जब आपके पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि भैया लगता है असेसिंग ऑफिसर को मेरे ट्रेड के बारे में नहीं समझ में आया, इसीलिए उसने ऐसे ऐसे चीजें लिख के ऐसे ऐसे एडिशंस प्रपोज किए हुए हैं, तब आप जवाब दे सकते हैं. और जवाब से मामला नहीं सुलझ रहा है तो फिर आप पर्सनल हियरिंग के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं. पर्सनल हियरिंग आपको विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी चीफ कमिश्नर के उसमें, और जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे सारा वार्तालाप कर सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड है ये मैटर. पर्सनल हियरिंग हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम उसकी भी इजाजत दे रहे हैं. Okay, so just to some members have requested, and I'm just putting this across, that as this is a new beginning for all of us, for the department, for the assessors, is it not possible that for the first year or two, the assessee should be given an option for personal hearing if there is some non-satisfactory remark which is or the order comes through? Is it possible for you to look into that consideration? Let me tell you that we have made the provision in the scheme, as I have already said. Okay. The question is that we will learn through experience. And Okay. when we learn through experience, then we will relax it for more and more cases if it is required. जी. And then वो जो विशेष परिस्थितियां हैं उनकी लिस्ट बढ़ जाएगी. Okay. And sir, one thing which has been asked by one of the members is that refunds etc. matters, will that be again at the discretion of AO, or it will be a timeline and immediately refunded once in some sort of a timeline? देखिए, रिफंड्स के जो मैटर हैं वो रेसिडुअल हायरार्की या फील्ड ऑफिसर के पास ही रहेंगे. और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये जो सिटीजन चार्टर था हमारा तो 2014 का, उसमें टाइमलाइंस एडवाइजरी तौर पे प्रिस्क्राइब्ड हैं. और यदि आपका रिफंड टाइम से नहीं आता है तो आपको ई निवारण ग्रीवेंस या सीपी ग्राम ग्रीवेंस करने का हक रहता है, और आप वो ग्रीवेंस करते हैं तो फिर उसके बाद ये चीजें हायर अथॉरिटीज को भी मालूम पड़ती हैं. तो ये सिस्टम जो रहेगा ये फील्ड ऑफिसर्स के लेवल पे होगा. और हो सकता है कि चूंकि अब टैक्स पेयर चार्टर को एक लीगल मैंडेट दिया गया है, तो टैक्स पेयर चार्टर के भी पॉइंट नंबर 13 में यदि आप देखेंगे तो हम इसके सर्विस स्टैंडर्ड्स भी प्रिस्क्राइब करने वाले हैं. तो वंस वी आर प्रिस्क्राइबिंग सर्विस स्टैंडर्ड्स, उसमें टाइमलाइंस आएंगी, और उन टाइमलाइंस का यदि पालन नहीं हुआ तो ये लीगली एनफोर्सेबल मामला हो जाएगा. जी, थैंक यू सर. देन ये जो आपने सर एक दूसरा जो चीज आपने बोला कि ये जो ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म होगा, उस पे थोड़ा आप जरा मेंबर्स को कुछ बता पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर ऑन दैट. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं. ई फाइलिंग अकाउंट में एक टैब है ई निवारण का. आप लॉगिन कीजिए, ई निवारण में अपना ग्रीवेंस लिखिए, आपके असेसिंग ऑफिसर के पास वो पहुंच जाता है, और उसके हायर अथॉरिटीज के पास भी पहुंचता है. तो वो मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है, उसी का इस्तेमाल करना है.
एक और मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल ये पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये हम इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है, किस डिपार्टमेंट की आपकी ग्रीवेंस है, एंड आप उसमें सब ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारा दिया हुआ है। एसएससी अपना जो है ग्रीवेंस का एप्लीकेशन उसमें अटैच भी कर सकता है, टाइप भी कर सकता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेफर करते हुए उसमें फाइल कर सकता है। और ये हम लोग के पास आ जाती है, पुश हो जाती है, जो भी कंसर्न्ड असेसिंग जिसके पास वो पैन है एसएससी का, एसएससी अपना पैन जरूर मेंशन करें, और वो पुश हो जाती है उस एओ के पास जहां पर है। सपोजिंग उनका कोई ग्रीवेंस है, रेक्टिफिकेशन में डिले हो रहा है, अपील इफेक्ट में डिले हो रहा है, रिफंड नहीं मिला बिकॉज ऑफ दैट, तो ये सब जो है आप ग्रीवेंस उसको पुश करेंगे तो जो भी पैन होल्डर है आपका, असेसिंग ऑफिसर आपका, उसके पास तक वो चली जाती है वो ग्रीवेंस, और फिर वो उस पर एक्ट करता है। और अगर उसे किसी कागजों की कमी है या कोई उसकी रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो वो आपसे कांटेक्ट करके ले लेगा और अब उस पे फिर आपका रिफंड बना देगा। तो इसमें हम लोग की भी ई निवारण जो इन्होंने बताया छबलानी जी ने, और ये पीजी पोर्टल, ये 2 जगह है, आप दोनों जगह पे डालें। आइदर और, मतलब दोनों जगह डालने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ई निवारण में डालें चाहे पीजी पोर्टल में डालें, लेकिन उसका निवारण होगा। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उस पे अलर्ट हैं और उस पे वो काम करेंगे ही करेंगे। Thank you, Lekha ji. Another gentleman is asking, will there be any provision to request for extension of time to file response? इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि हम स्पीड में भी काम करना चाहते हैं। तो स्कीम में यदि देखा जाए तो लास्ट ईयर जो स्कीम अनाउंस हुई थी उसमें 15 दिन का टाइम दिया गया था। आपका 143(2) नोटिस जो जाती है आपके स्कूटनी सिलेक्शन का, कैश सिलेक्शन की, उसका रिस्पांस देने के लिए। बाद में लोगों ने बोला 15 दिन कम है, तो हमने उसको 2-3 बार उसको एक्सटेंड किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल जस्टिस जहां डिमांड करता है हम उस टाइम पीरियड को रिलैक्स भी करते हैं, और उस बाद की नोटिस इसमें भी टाइम लिख के आता है। और जहां तक हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए कि गिवन टाइम में दे सकें, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। हमने कोई एडवर्स व्यू नहीं लिया था कि जिन लोगों के लेट भी आंसर्स आए थे। Okay. Sir, one of the other attendees is asking, who will address the tax credit issues after the e-assessment proceedings are closed? So somebody, अगर ये close हो गया और समझो कि कोई चीज उसकी एक्शन नहीं ली गई, तो उसके लिए वो असेसी किससे बात कर सकता है कि कुछ कर सकता है आगे, और अदरवाइज he has to still follow with the portal itself? ऐसा है कि जब असेसमेंट यहाँ पे ई प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि जब असेसमेंट ऑर्डर फाइनल हो रहा है फेसलेस में, तो उसमें आपको जो क्रेडिट सिस्टम में बताई जा रही है वो आपको दी जाएगी। उसमें तो कोई दो मत नहीं है, टीडीएस हो, चाहे एडवांस टैक्स हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो। लेकिन कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं क्रेडिट को लेके, तो हम जैसे ही अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे, हम सारा एंटायर रिकॉर्ड जुरिसडिक्शनल जो फील्ड ऑफिसर है उसको भेज देते हैं, और उसके बाद का जो सारा कुछ काम है, चाहे वो रेक्टिफिकेशन रिलेटेड है या अपील इफेक्ट रिलेटेड है, क्रेडिट रिलेटेड है, रिफंड रिलेटेड है, वो सब आप उनसे संपर्क करके कर सकते हैं। Okay, sir. Now, I think we have one last question which I would just put it to you is that presently in our industry, we are getting compliance notice for reported turnover, which is not matching with the data maintained by customs, as the data includes export made on consignment basis and exports made on certification agencies for certification, whereas in profit and loss account only actual exports get reflected, मतलब वो कम हो जाता है। How to respond to this compliance if at all not understood by the particular assessment officer? We haven't gone through this issue, and I think if the assessee, क्या होता है कि exhibitions are around the world, then all these people take part in the exhibitions. So माल वहाँ exhibitions में out of India जाता है, which is on consignment basis. जो माल बिकता है उसी का सेल इनवॉइस बनता है, बाकी का माल वापस आ जाता है।
सिमिलरली यहाँ से माल जो हमारे हीरे बिकते हैं ना, तो उसके सर्टिफिकेशन होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट की वैल्यू जो इंटरनेशनल लेबोरेटरीज है उसको सर्टिफाई करती है, तो उसके लिए बारगांव माल जाता है, वो सर्टिफाई होके वापस आता है। तो ये एक्चुअल में टर्नओवर नहीं है, ये बेसिकली माल जाता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सर्विस व्हिच कम्स इन एंड इट इज अ नेसेसिटी बेसिकली टू सेल द डायमंड्स। तो ये दोनों इश्यू जरा सर इसको एक मे बी आई थिंक इन योर सिस्टम इटसेल्फ व्हाइल यू आर looking into it, maybe some sort of provision needs to be looked into so that लोगों को ये तकलीफ ना हो। Mr. You are Mr. Kothari, I suppose. Yeah. So आप इस इशू को अदरवाइज कैसे डील कर रहे थे? फेसलेस तो आपके लिए नई चीज है, तो नेचुरली आप जब रूबरू क्या होता है, आज हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं। एक है कि टर्नओवर टोटल कितना हुआ और उसमें से ये दोनों डिडक्ट हो जाते हैं कि भाई तो इस तरह से अपना आप अरिथमेटिक और कैलकुलेशन प्रेजेंट करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि कंसाइनमेंट पे जो माल भेजा गया है दैट इज नॉट एक्चुअल सेल्स, तो आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि असेसिंग ऑफिसर उसको नहीं कंसीडर करेगा। नहीं सर, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इफ इट इज फीजिबल दैट मे बी इफ द डिपार्टमेंट कैन गिव अस सम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट whereby how it could be presented in the balance sheet so that this could be avoided for everyone, because you know, to educate 7,000 members or their total maybe 15-20,000 companies might become very difficult. So if some sort of a tabulation could be made by the department which could be then distributed through Gem and Jewellery Export Promotion Council, so it will help the SSCs as well as the department not to have this problem down the line। नहीं तो क्या हो जाता है कि जब स्टार्टिंग में कोई इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है फिर आगे जाके वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, हमें मेल भेज दीजिए यहाँ का। Request our team to put a small brief on this and try to yes, we will definitely take up the matter with the board. अच्छा, एक दूसरा एक मेंबर का ये है, मेनी टाइम्स जो डिटेल्स पूछी जाती है वो वॉल्यूमिनस होती है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू अपलोड दैट। इफ सैंपल डिटेल्स आर आस्क्ड इट कुड बी इजियर टू एक्सप्लेन, क्योंकि इतनी किसी की 2-3 हजार इनवॉइस रहती है, उसमें हर एक बाद में एयरवे बिल, शिपिंग एयरवे बिल और सब रहता है, तो इतना अपलोड करना तो सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर कभी-कभी अपलोड होता भी नहीं और बहुत तकलीफ होती है यहाँ से साइज ऑफ दैट फाइल भेजने के लिए। देखिए, अब जहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस का जमाना था तो उस समय तो चलिए हम बोल सकते थे कि एसएससी को कि आप लेके आइए और एक दिन दिखा दीजिए हमें। इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेफिनेटली लिमिटेशंस रहेंगे और इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी एक साइड को बल्कि दोनों साइड को फॉलो करने की जरूरत है। ना सिर्फ हम यहाँ लोगों की तकलीफ क्या है मैं आपको बोलूँ, आज के चीजें बल्कि एसएससी नहीं, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है सर। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। इसमें सर एक छोटा क्या इशू होता है कि इन स्पाइट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन द ई पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट, अब क्या है कि इंपोर्ट होता है तो आइसगेट के ऊपर अवेलेबल है, एक्सपोर्ट होता है तो भी आइसगेट के ऊपर अवेलेबल है, उसी के साथ में ये सब चीज जो है एयरवे बिल, शिपिंग एयरवे बिल सभी अवेलेबल है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्हेन वी आर फाइलिंग अवर इनकम टैक्स, व्हेन द क्वेरीज कम इन, वो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, एक काम करो, ये आप 7 साल का ये इतना डिटेल भेज दो। अब नहीं भेजे तो भी तकलीफ है। वो असेसिंग ऑफिसर के पास तो ऑप्शन है कि वो ई पोर्टल पे जाके चेक कर ले, लेकिन वो जाके वहां चेक करता नहीं है और फिर बोला जाता है हमको जो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आज आप हमको ये सवाल कोई पूछेंगे और हम इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अपडेटिंग, तो उसकी तकलीफ फिर असेसी को नहीं आनी चाहिए। ऐसी संभावनाएं कम रहेंगी इस सिस्टम में, क्योंकि हमको भी पता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस डेटा अपलोड नहीं किया जा सकता है।
तो नेचुरली न तो वो चीजें पूछी जाएंगी, और यदि पूछी जाती भी हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये डिटेल्स आपको इस पोर्टल पे यहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जवाब को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जहाँ पे फिजिबिलिटी का इशू आ जाता है कि इतना वॉल्यूमिनस डेटा नहीं सप्लाई किया जा सकता, उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई असेसिंग ऑफिसर, आई मीन, आप ये तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि उसका कोई बायास होगा। वो आपकी सबमिशंस को कंसीडर करेगा, नहीं करता है तो नेचुरली ग्रीवेंस के मैटर्स बनते हैं, देन वी विल हैंडल इट। ऐसा संभावना नहीं है अभी तो, चूंकि स्कीम ने अभी अपना स्टार्ट लिया है, तो इसलिए लेट अस बी होपफुल दैट सच थिंग विल नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, इसके लिए भी हम एक छोटा ब्रीफ आपको दे देंगे, तो अगर कुछ क्लैरिफिकेशन अगर उसके अंदर आप दे पाए तो वुड बी रियली नाइस। एंड वन लास्ट एक चीज क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पे रखिएगा कि हमारे ये जो है ये ग्रुप असेसमेंट हो रहा है, मतलब एक टीम एफर्ट है। तो ऐसा कोई अनरीजनेबल या ऐसा कोई बहुत ही जैसे कोई एक आदमी के दिमाग में आ गया कोई एक्सेंट्रिसिटी से आपको सामना नहीं करना है, क्योंकि वो लोग इशू बेस्ड ही आपसे पूछेंगे। तो अगर इशू है तभी आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये बड़ा रीजनेबल अप्रोच आपको दिखेगा, बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि अब ये ग्रुप डिस्कस करके क्या चीज जरूरी है मांगना क्या नहीं है वो करके फिर वो आपसे फिर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये चाहिए। तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आएगा पहले और नए में फर्क। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन वापस आया है, इज दैट डज compliance portal does not allow to provide any explanation, is there a way how the assessee can deal with that? एक्सप्लेनेशन किसका, असेसी का या डिपार्टमेंट का? I think it's two ways. तो इसके लिए कंप्लायंस पोर्टल तो आपको इंफॉर्मेशन उसके पोजीशन में होती है वो बताता है, और फिर आपको उसका जवाब देना पड़ता है। I agree with that personally, yes. सो उसका जवाब जब आप देंगे तो नेचुरली यदि कोई आप चाहते हैं कि कोई बॉक्स रहे जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकें, आपका ये कहने का मतलब है, तो आप इस मामले में भी हमें मेल कीजिएगा। हम उसको, जो हमारा कंसर्न कंप्लायंस पोर्टल का एक अलग प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये हैंडल होता है, हम उनको बोलेंगे कि भाई जहां तक हो सके एसएससी को टेक्स्ट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखने का स्पेस दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर सर हम आपको एक छोटा ब्रीफ हमारा देते हैं जी। एंड आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल educative session which we had, and would like to thank all three of you, Lekha ji, Rajesh ji and Chablani Saab, for all your inputs that you've given. And we hope that this will be a new phase where life will become easier both the ways, and there will be more people coming and paying taxation in the right manner, as things would be easier that way. And if there is anything, will in future, maybe in 6 months to 8 months, once you start the process, we might have and request you for another one session like this, so that if there are any fine tuning or hiccups which are there for the people who are there, maybe we can request you to have a look at it and try and give a reasonable solution. In the meantime, Sanjay ji, thank you so much for your words. A very good response we have received from your council. In the meantime, Sanjay ji, I would also request you that for अगर और किसी की queries हैं तो आप उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर डाउन द ईयर मतलब 6 महीने बाद या जैसे जैसे समय बीता जाता है और आपके मेंबर्स को कभी कोई परेशानी हुई तो आप लोग हमेशा फील फ्री करें कि डिपार्टमेंट को आप लोग अपने कंसर्न्स और अपने ग्रीवेंसेस जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। और एक बार आपसे हमें फीडबैक मिलेगा कि उनको ये परेशानियां हैं, तो जहां तक हो सकेगा हमारी इंटरनल टीम्स लगी रहती हैं, इस पे ध्यान देती हैं, तो हम लोग उसको रिजॉल्व करने की आप भरसक प्रयत्न करेंगे। So what we will do is we will request all our members, if they have any issues, to write to the council, and we will put this council as a intermediary between the department and us, and we'll have a continuous interaction with the department and the members, and try and educate the members through your help, and make sure that all the issues which are there with the members are at least looked into or tackled, or at least some knowledge is given to them with the help of the council. Yes. So I would like to thank everybody who's joined, and Lekha ji, thank you so much for everything,
that you have done for the council. Rajeshji, thank you so much. And Chablani Saab, thank you so much for all the wonderful presentation which you made. And I hope I've got at least 7-8 people who have said that it has been very informative, and thank you for arranging this. So thank you once again. Thank you for inviting us. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.